آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اللہ والے اور ایک بچے اور چیتے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ انسان کے بچے کو چیتا اٹھا کر جنگل میں لے گیا۔ پھر اللہ والے نے کیا کیا؟ چیتے نے اس بچے کو کھایا یا نہیں کھایا؟ چلیے سنتے ہیں یہ پورا واقعہ۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولے دوستوں۔ ایک اللہ والے بہت بوڑھے تھے، لیکن جب پیدل چلتے تھے تو کسی جوان سے کم نہیں لگتے۔ ایک جوان آدمی تھوڑا دور چل کر تھک جاتا ہے، لیکن آپ بنا تھکان کے سفر کیا کرتے تھے۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی اور کہا کہ میرے گاؤں میں بہت سے لوگ دین اسلام سے دور ہیں، ان کو ایک سچے استاد کی ضرورت ہے، لیکن کیا آپ اتنا دور کا سفر کر پائیں گے؟ آپ مسکرائے اور فرمایا کہ کام ہی یہی ہے۔ اسلام کی روشنی گھر گھر تک پہنچے۔ میں تمہاری بات ٹال نہیں۔ وہ شخص آپ کو دعوت دے کر چلا گیا۔ اب آپ نے ایک دن اپنا سامان باندھا، جو کہ ایک لاٹھی اور ایک تھیلے میں تھوڑے سامان کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور پھر آپ سفر کرنے لگے۔ یہ سفر بہت دور کا تھا۔ اللہ کو اپنے دل میں بسائے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی دنیا کی آپ خوبصورتی دیکھتے ہوئے چلتے جا رہے تھے۔ جس گاؤں میں آپ کو جانا تھا، اس گاؤں تک ابھی آپ نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک گاؤں نظر آیا۔ آپ نے دل میں کہا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ یہ سوچ کر آپ گاؤں میں تشریف لے آئے۔ اس گاؤں کے چاروں طرف ایک بہت گھنا سا جنگل تھا۔ اس سے گزر کر آپ اس گاؤں میں آئے تھے۔ اس جنگل سے جنگلی جانوروں کی بھیانک آوازیں بھی آ رہی تھیں، لیکن آپ کسی سے نہیں ڈرے اور بغیر پرواہ کیے گاؤں میں آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، سب عورتیں گھروں میں تھیں اور مرد کھیتوں میں کام کرنے گئے تھے۔ اب اجازت لینے کی ضرورت تو تھی نہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اللہ والے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے آ گئے اور پانی پی کر پہلے اپنی پیاس بجھائی، پھر وضو کر کے آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ نماز پڑھتے جا رہے تھے کہ لوگ اپنے کھیتوں سے کھانا کھانے کے لیے اپنے گاؤں لوٹے۔ انہوں نے دیکھا ایک اجنبی بزرگ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ دیتے ہیں، کبھی زمین پر ناک اور پیشانی رکھ دیتے ہیں۔ عجیب انداز تھا کہ اس بارے میں وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ اس گاؤں میں رہنے والے دین اسلام کو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو نماز کے بارے میں انہیں کیا معلوم ہوتا؟ ان کے گاؤں میں تو اب تک کوئی اسلام کی بات کرنے آیا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ بہت کٹھور تھے اور اپنے مذہب کے لوگوں کو ہی اس گاؤں میں برداشت کرتے تھے۔ کوئی اگر غیر شخص وہاں آ جاتا تو اسے مار کر باہر نکال دیتے۔ یہ سب مل کر اس کو دردناک سزا دیتے کہ وہ آنے والا شخص چاہے جتنا بہادر ہوتا، وہ ڈر کے مارے اپنا مذہب بدل لیتا۔ اسی بات نے ان سب کو گھمنڈی بنا دیا تھا کہ ہم جیسا بہادر تو کوئی آیا ہی نہیں۔ مضبوط جسموں والے بھی چینٹی کی طرح مسل دیے جاتے۔ اللہ والے کو دیکھ کر وہ آوازیں کسنے لگے۔ اب اللہ والے تو ان کی آواز سن نہیں رہے تھے، کیونکہ آپ کی نماز اتنی پکی تھی کہ ادھر ادھر کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی تھیں۔ دھیان تھا تو صرف اس کی طرف جس کی عبادت کر رہے تھے۔ جب بہت دیر تک آپ نماز پڑھتے رہے اور سجدے سے سر نہیں اٹھایا، تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، یہ آخر کر کیا رہا ہے؟ اس سے کہو یہ اٹھے اور بتائیے، یہ کون سا کام ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ ان میں سے ایک شخص اللہ والے کے پاس آیا اور چیخ کر بولا، اے بوڑھے رک جاؤ، اس کام سے تم نہیں رکے تو ہم بہت برا کریں گے۔ لیکن آپ کو اس کی آواز نہیں آئی۔ وہ چلاتا رہا، مگر آپ کے کان سن نہیں رہے تھے۔ اب جب آپ نے نماز پڑھ لی تو ان لوگوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا، بھائی کیا ہوا؟ تم لوگ کیا مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اب تک اتنی دیر سے چلا رہے ہیں، تمہیں آواز نہیں آئی؟ آپ نے کہا، مجھے آواز سنائی نہیں دی۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا، یہ بتاؤ یہ کام کیا کر رہے ہو؟ آپ مسکرائے اور کہا، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، نماز کیا ہے؟ آپ نے کہا، یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا، تو کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ والے نے فرمایا، اپنے معبود کی جس نے مجھے بنایا ہے۔ گاؤں کے لوگ بولے، وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ والے نے فرمایا، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ تو ہمارے دلوں میں ہے کیا؟ اس کی نشانیاں تمہیں دکھ نہیں رہیں؟ اس پیڑ کی شکل میں، زمین کی شکل میں، اور یہ پانی، ہوا، یہ تمہارا وجود، تم سب، تمہارے جانور، سب اس نے بنائے ہیں۔ میں اسی کی عبادت کر رہا ہوں۔ اب وہ لوگ جو کہ اپنے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین مانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے اسلام کے بارے میں ایسی باتیں سنی تو ان کا خون کھول گیا اور کہا، اے بوڑھے،
अजीब बात करते हो, खुदा तो वह होता। इस गांव में कोई और मजहब का आदमी नहीं आ सकता, इसलिए तुमको यहां से निकलना पड़ेगा। यह सुनकर अल्लाह वाले ने फरमाया, मेरे अल्लाह को अनदेखा कह रहे हो, लेकिन वह तो नहीं दिखकर भी दिखता है। उसके लिए असल आंखें चाहिए, वह हर जगह है। गांव के लोगों ने कहा, वो देखो, सामने जो मूर्ति रखी है वह हमारा खुदा है, माबूद है, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके आगे हम झुकते हैं, जिससे हम मांगते हैं, दुआ करते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, जो तुम्हारी बनाई हुई मूरत है, कोई उसे अपना खालिक और माबूद कैसे कह सकता है, जिसे अपने हाथों से बनाया और उसकी ही इबादत करते हो। वह लोग अल्लाह वाले की बातों से गुस्से में पागल हो गए और बेअदबी और लानता करने लगे। कोई कहता, एक तो इतने बूढ़े हों, इतने कमजोर जिस्म के साथ सफर कैसे करने लगे, फिर किसी अजनबी गांव में घुसकर ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो जिनका कोई सर है न पैर। एक और बोला, यह शख्स हमारे दीन के खिलाफ बातें कर रहा है। इसकी उम्र का लिहाज किया मगर यह बाज नहीं आया। वह लोग बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहे थे। कोई आप पर आवाजें कसता तो कोई आपको धक्के देने की धमकियों देता। उनकी जुबान से बेअदबी और मजाक के जुमले निकलते जा रहे थे और उनके दिल अल्लाह वाले की बातों को सुनने के लिए बिल्कुल बंद हो चुके थे। अल्लाह वाले ने सब्र से सबकी बातें सुनी, मगर आपकी नज़र में नरमी और दिल में सबके लिए मोहब्बत थी। अब एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी आपके सिर पर आ गया और कहा कि इस बूढ़े को तो मैं एक उंगली से उठाकर बाहर फेंक देता हूं। वह यह करने ही वाला था कि उनके गांव का एक बुजुर्ग बोल पड़ा, नहीं, इसने हमारी बुत की तौहीन की है जिसकी हम इबादत करते हैं, इसीलिए यह सजा कम है कि इसे गांव से बाहर फेंक दिया जाए। हम इसी गांव में इसे रखेंगे, यह हमारा नौकर बनकर रहेगा। अल्लाह वाले को गांव वालों ने तंग करने का इरादा कर लिया था। गांव के सब लोग उस बूढ़े बुजुर्ग की बात मान चुके थे, जिसने कहा था कि अल्लाह वाले को यूं गांव से बाहर निकाल देना काफी नहीं। उनका मंसूबा यह था कि उन्हें गांव में ही कैद रखकर इतना तंग किया जाए कि इनकी जिंदगी बोझ बन जाए और वह खुद मौत की दुआ मांगने लगे। गांव में ऐलान कर दिया गया कि यह बूढ़ा मुसलमान है, इसे किसी तरह भी सुकून से ना बैठने दिया जाए। इस ऐलान के बाद गांव के लोगों ने अल्लाह वाले पर जुल्म और तंग करने के तरीके इख्तियार कर लिए। कभी आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते ताकि जब आप चलने लगे तो आपके पैरों में कांटे चुभे और हर कदम आपके लिए अजियत का बाइस बने। कभी आपके सर पर पत्थर फेंके जाते और जब आप दर्द से कर राहते तो लोग हंसने लगते और मजीद आवाजें कसने लगते। छोटे बच्चे भी उन जालिमों के कहने पर अल्लाह वाले का मजाक उड़ाते, आपकी हालत पर हंसी उड़ाते। कभी आपकी लाठी छुपाते दी जाती ताकि आप चलने में मुश्किल महसूस करें और जमीन पर गिर जाए। और जब आप जमीन पर गिरते तो बच्चे और बड़े सब आपका मजाक बनाते। कभी आप पर कीचड़ फेंक दिया जाता ताकि आपका लिबास और जिस्म गंदा हो जाए। आप उस जुल्म और शरारतों को सब्र से बर्दाश्त करते। वह जानते थे कि अल्लाह के रास्ते में तकलीफें उठाना उनके ईमान का हिस्सा है। जब भी आप नमाज के लिए बैठते तो कोई ना कोई शर पसंद शोर मचाकर आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता। गांव वाले दरवेश अल्लाह वाले को हर मुमकिन तरीके से तकलीफ देना चाहते थे, मगर आपने हर तकलीफ को बर्दाश्त किया। अल्लाह वाले के दिल में उन सब के लिए मोहब्बत थी और वह दुआ करते थे कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और इनके दिल नरम करें। आप जानते थे कि अल्लाह की राह पर चलना आसान नहीं है। उस गांव में मर्द औरतें भी सख्त दिल और बेरहम थीं। उनके दिलों में ना तो किसी बुजुर्ग का एहतराम था और ना ही हमदर्दी। उनकी अकड़ और गरूर बढ़ता ही जा रहा था। उनके दिल सख्त और उनकी ज़बानें तल्ख थी। गांव की औरतें बड़ी मगरूर थीं और शायद उसकी वजह यह थी कि वह हर साल एक बेटे को जन्म देती थीं जिस पर उन्हें बड़ा नाज था। उन औरतों के दिल में दुनिया की इन नेमतों पर इतना गुरूर था कि वह खुद को बेहद ताकतवर और हसीन मल्लिकाएं समझने लगी थीं। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। जो चाहती वही मिलता, जो कहती पूरा हो जाता। वह लोग इस कदर ऐशो आराम में मग्न थे कि उन पर अब तक कोई मुश्किल या आजमाइश ना आई थी। मालो दौलत की फरानी और जिंदगी में आसानियों ने उन्हें घमंड में मुब्तला कर दिया था। अल्लाह के हुक्म और इबादत की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। गांव की उन औरतों के गुरूर का यह आलम था कि वह अल्लाह वाले को न सिर्फ हिकारत से देखती बल्कि उनकी बेइज्जती करने के लिए
कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। अल्लाह वाले ने उन सब के रवैये को देखकर दिल में सब्र किया और दुआ की कि अल्लाह पाक, इन सबको तू सच्चे रास्ते पर चला। उस गांव के बाहर जो जंगल था, वहां पानी का एक कुआं था जिससे सब पानी पीते। अल्लाह वाले के आने से पहले उन औरतों की खिदमत गुजार औरतें यानी नौकरानियां उस कुएं से पानी भर कर लाती थीं। लेकिन अब चूंकि आपको सजा दी जा रही थी, इसलिए आपको पानी भरने के लिए मजबूर किया जाता। कुआं कोई बहुत पास नहीं था, बल्कि दूर चलकर जाना पड़ता था। सोचने की यही तो बात थी, उस कुएं से पानी भरना और फिर मटके उठाकर वापस लाना एक बहुत मुश्किल काम था। अल्लाह वाले भूखे प्यासे सबके काम करते, किसी मुलाजिम की तरह। अल्लाह वाले को वहां रहते हुए 1 महीना हो गया था। इस बीच उन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया। एक दिन आप काम करके बहुत थक गए थे, पर जबान से कोई शिकवा नहीं किया। अब रात में आपने नमाज की नीयत बांधी और नमाज पढ़ने लगे। आप दिल लगाकर ध्यान से नमाज पढ़ रहे थे कि गांव में चहल पहल शुरू हो गई, कि जैसे कोई बहुत अनहोनी सी हो गई है। ये सब होने पर भी किसी को आपका ध्यान नहीं आया। आपको नमाज पढ़ने से कोई रोकने नहीं आया, यहां तक कि सुबह का उजाला फैल गया। आपने फजर की नमाज भी पढ़ ली थी। अब उनमें से एक औरत आपके पास आई और कहा, ए बूढ़, क्या तुम्हें खबर मिली है कि आज हमारे गांव की सबसे खूबसूरत औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है? वह मेरी बहू है। ये उसकी पहली औलाद है। बेटा हुआ है। बेटा, इसलिए बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। इस जश्न को मनाने में तुम हमारा साथ दोगे तो कामों के लिए तैयार हो जाओ और कमर कस लो। फिर वह वहां से जाने लगी, लेकिन पलट कर आई और कहा कि चलो, आज इस खुशी में मैं तुम्हें 2 रोटी खिला देती हूं ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। आप मुंह मुस्कुरा दिए। उसने कहा, कमाल की बात है कि इतने काम करने पर भी मुस्कुरा रहे हो। किस मिट्टी से बने हो जो खामोशी से चुप करके सब काम करते हो और कुछ नहीं कहते? तुम्हारी जान की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है या कुछ और सोच रहे हो? आपने कहा, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से इस गांव में आया हूं और उसके हुक्म से ही यहां से चला भी जाऊंगा। हर एक पर उसकी मर्जी चलती है। हम तो बस उसके बंदे हैं जो उसके इशारों पर चलते हैं और उसके हुक्म के इंतजार में रहे हैं। वह चिढ़कर बोली, फिर से अपने अल्लाह की बात करना शुरू कर दी। तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमारे सारे काम करो। मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। अब मैं तुम्हारे पास पानी के बर्तन लेकर आती हूं। एक एक करके तुमने वह पानी के मटके भर कर लाने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दावत है और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वह औरत चली गई और फिर बहुत सारी औरतें पानी के बर्तन लाईं। आपने अल्लाह का नाम लिया और दुआ मांगने लगे। इसके बाद आपने पानी के बर्तन उठाए और कुएं की तरफ चल दिए। वहां जाकर पानी भरकर जैसे ही वापस आने लगे कि पीछे से आपको किसी जानवर के गुर्रा की आवाज आई। आपने पलटकर देखा तो दरख्तों के पीछे से एक चीता आपको देख रहा था। आपने उससे कहा, ऐ अल्लाह के बनाए हुए, तू मुझ पर क्या हमला करने वाला है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा, देख, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूं, इसीलिए बेहतर यही है कि अपने ठिकाने पर चला जा। अगर तू भूखा है तो वह रब ही तेरे खाने का इंतजाम कर देगा। वह जैसे आपकी बात को सुन रहा था और समझ रहा था। आपके हुक्म पर वह वापस जंगल में चला गया। आपने बर्तन उठाए और गांव में आ गए। औरतों ने पानी देखा तो कहने लगी, बूढ़े होकर भी इनके अंदर इतनी ताकत है। जिस औरत ने पानी मंगाया था, वह औरत हंसती हुई अपने घर जाने लगी कि इतने में एक औरत की चीखें मारने की आवाज आई, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, ये चीता मेरे बच्चे को उठाकर लेकर जा रहा है। गांव वाले दौड़ते हुए उस घर की तरफ गए जहां से औरत के चीखने और दहाड़े मारकर रोने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जब तक वह लोग वहां पहुंचते, वह चीता जो जंगल की तरफ से आया था उस बच्चे को उठाकर ले गया। आदमियों ने लाठियां उठाई और जंगल की तरफ दौड़े। उनमें वह ताकतवर मर्द भी था जिसने अल्लाह वाले को उठाकर गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। वह सब जंगल की तरफ गए, पर कुछ देर के बाद नाकाम वापस लौटे और कहा, हमें चीता नहीं दिख रहा। इतने में अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूं? वह औरतें जो पहले ही अल्लाह वाले से चिढ़ी थीं, कहने लगीं, तुम अपनी हालत देखो, सेहत देखो और मदद करने की बात करते हो। हमारे गांव के ताकतवर हट्ट-कट्टे मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहते हो कि तुम हमारे काम आओगे।
क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि एक चीते का मुकाबला कर? उस गांव का बूढ़ा आदमी कहने लगा, चलो हम अपने माबूद से मांगते हैं, हमारा बुत हमारी बात सुनेगा। सब गांव वाले हाथ जोड़कर बुत के सामने खड़े हो गए और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। अल्लाह वाले उन सब की बातों को सुन रहे थे, लेकिन बीच में बोलते तो वह लोग बिगड़ जाते और आप पर गुस्सा निकालते। बहुत देर तक सब गांव वाले हाथ जोड़कर बुत के सामने खड़े हो गए और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। अल्लाह वाले उन सब की बातों को सुन रहे थे, लेकिन बीच में बोलते तो वह लोग बिगड़ जाते और आप पर गुस्सा निकालते। बहुत देर तक वह लोग हाथ जोड़े खड़े रहे। कोई रो रहा था, कोई मिन्नतें कर रहा था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा था। जाहिर सी बात है, चीते ने अब तक बच्चे को खा ही लिया होगा, पर मां के दिल में एक आस थी, उम्मीद थी वह अल्लाह वाले जो उनके जुल्म पर भी उनके लिए बद्दुआ नहीं कर रहे थे, बल्कि दुआ कर रहे थे। इतने में वही औरत जो आपका मजाक उड़ाती थी वह आपके पास आई। उसने कहा, तुम अपने रब से दुआ मांग रहे हो, हमारे लिए भी दुआ करो। पहली बार उसने अल्लाह वाले के आगे हाथ जोड़े थे। वह कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हमारे बुत ने अब तक हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं तुम्हारे आगे अब मिन्नत करती हूं कि जो भी तुम्हारा रब है उससे कहो हमारा बच्चा वापस कर दिया जाए। उस औरत के कहने पर गांव के मर्द चीखने लगे, क्या कह रही हो? इसका रब हमारा क्या काम कर सकता है? अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? उस औरत ने जल्दी से कहा, हाँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए, मेरे बच्चे को वापस ले आइए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अल्लाह वाले ने कहा, इससे पहले कि मैं जंगल की तरफ जाऊं, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। आज तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। अल्लाह वाले ने उन सबके सामने वजू किया और नमाज पढ़ने लगे। नमाज के बाद अपनी लाठी उठाई और थैला ली जंगल की तरफ चले गए। थैले में क्या था किसी को कुछ नहीं पता था। वह आदमी जिसको अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, उसने कहा, मैं भी साथ चलता हूं। वह हंसने लगा और कहा कि मैं तुमसे कितना ऊंचा हूं, कितना लंबा हूं, मुझसे जो काम ना हुआ वह तुम जैसे कमजोर बूढ़े से कैसे होगा। चलो देखते हैं तुम्हारी औकात। उसके बाद वह आपके साथ चल पड़ा। जंगल में आकर आप कुएं के पास खड़े हो गए और लाठी जमीन पर थक थक मारने लगे। फिर कहा, ए चीते, तू मुझे सुन सकता है, जहां भी है मेरी आवाज सुन। तू यहां आजा, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा। तू बस उस बच्चे को हमारे हवाले कर दे, उसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तूने गांव के बच्चे को ही उठा लिया जो अभी पैदा हुआ है। ये ठीक नहीं है। ये लोग खुश थे, इनकी खुशी को तूने खत्म किया है। ऐसा मत कर। तू एक अल्लाह को मानने वाला है और एक अल्लाह की तू इबादत करता है, और तू जानता है कि वही तुझे खिलाता है, पिलाता है। अब तक तू कभी किसी के सामने नहीं आया, तो अब क्यों आ रहा है? अब क्यों इन सबको तू तंग कर रहा है? आप ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वह चीता वहीं खड़ा सुन रहा है। वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, हो गया तुम्हारा तमाशा, अब वापस चलो। उस चीते ने बच्चे को खा लिया है, मां को सब्र करना होगा। आपने कहा, मां सब्र करेगी, लेकिन वह उससे ज्यादा शुक्र करेगी, क्योंकि उसका बच्चा वापस आएगा। उसकी खुशी उससे छीनी नहीं जाएगी। कैसे आएगा चीता? अल्लाह वाले ने कहा, चलो वापस चलते हैं। वो बोला, देखा जो मैंने कहा वही हो रहा है। आपने कोई जवाब नहीं दिया और लाठी टेकते हुए गांव वापस आ गए। आप खाली हाथ थे, बच्चा आपके हाथ में नहीं था। वह औरत भागती हुई आपके पास आई। उसने कहा, मैंने आप पर भरोसा किया और आप बड़ी उम्मीद दिलाकर जंगल गए थे। आपने कहा, फिक्र मत करो, वह आ जाएगा। उन्होंने कहा, वह इतना छोटा बच्चा है, कल का पैदा हुआ बच्चा चलकर आएगा। आपने कहा, नहीं, वह चीता उसे लेकर आएगा। किसी को आपकी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ये बूढ़ा तो पहले दिन से ही ऐसी बातें करके हमारा दिमाग खराब करता है। इसकी फिजूल की बातों की वजह से हम सब इस मुसीबत में घिर गए हैं। अब क्या करना चाहिए? आपने कहा, सुबह होने का इंतजार करो। अब तो अंधेरा हो गया है और अंधेरे में तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। वह आदमी कहने लगा, ये बूढ़ा तो बड़े दावे कर रहा था। चीते ने इसकी बात को भी नहीं सुना। पता है इसने क्या किया? ये तो हवा में ऐसी बातें कर रहा था जैसे वह चीता इसकी बात सुनकर सर झुकाता हुआ इसके पास चला आएगा, जैसे वो इसका कोई मुलाजिम हो। अल्लाह वाले ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, चलो अभी घर चलते हैं, फिर सुबह हम उसको फिर से ढूंढने जाएंगे। मां चिल्ला उठी तो अल्लाह वाले बोल पड़े, बेटी मेरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा।
सुबह तक तुम्हारे बेटे को वह चीता खुद लेकर आ जाएगा। औरत बोली, तो ठीक है। वह चीता वापस आ जाता है और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होता। जरा सी भी खरोच नहीं लगती तो मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आऊंगी। अल्लाह वाले ने उसको तसल्ली के अल्फाज बोल तो दिए थे, पर आपने अल्लाह पाक से दुआ भी जरूर करनी थी। अल्लाह पाक से आपने दुआ करना शुरू की। आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब रात गुजर गई और सुबह हुई तो आपने उन सबके सामने ही नमाज पढ़ी और वह कुछ कह नहीं सके। लेकिन एक बू अल्लाह वाले ने उसको तसल्ली के अल्फाज बोल तो दिए थे, पर आपने अल्लाह पाक से दुआ भी जरूर करनी थी। अल्लाह पाक से आपने दुआ करना शुरू की। आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब रात गुजर गई और सुबह हुई तो आपने उन सब के सामने ही नमाज पढ़ी और वह कुछ कह नहीं सके। लेकिन एक बूढ़ा शख्स आपको घूर कर देख रहा था। उसका दिल जल रहा था। उसने सबके कानों में जहर डाला कि देखो, ये शख्स अपनी मनमानी कर रहा है। हमारे सामने ये इबादत करते जा रहा है और हम कुछ नहीं कहते। अब बहुत हो गया है। हम हमारी खुशी गमी में बदल गई। इसको हम बहुत कड़ी सजा देंगे। वह सब गुस्से में आपकी तरफ बढ़ने लगे कि चीते के गुरने की आवाज आई। वह डर कर पीछे हटे। वह वही बड़ा सा चीता था। बच्चे को अपने दांतों में दबाए वहां पर खड़ा था। उन सबको खूनी नजरों से देख रहा था, जैसे बच्चे की जगह अब उन सबको खा जाएगा। वह लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। सारी अकड़ निकल चुकी थी। अल्लाह वाले मुस्कुराए और चीते के पास आकर कहा, ला, इस बच्चे को मुझे दे दो। ये तुम्हारा खाना नहीं है। तुम्हें बहुत सा खाना खिलाया जाएगा, बस इसे मत खाओ। आपके हुक्म पर वह धीरे धीरे चलता हुआ आपके पास आया और बहुत ही अदब से वह बच्चा आपके हाथ में दे दिया। आपने झुककर बच्चे को अपनी गोद में लिया और प्यार से देखने लगे। अल्लाह वाले ने उस बच्चे को उलट पलट के देखा। उसे कोई खराश नहीं आई थी। आपने उस बच्चे को मां के हवाले किया और कहा, लो तुम्हारा जिगर का टेढ़ा, इसे कुछ नहीं हुआ। बच्चे को मां को देकर आपने चीते से कहा, जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में तो कोई भी सोच नहीं सकता था। वह थोड़ा सा पीछे हटा, फिर तेजी से दौड़ने लगा और उस बूढ़े पर जिसने अल्लाह वाले को सजा देने का ऐलान किया था, उस पर छलांग लगा दी। वह अपने दांतों को उसकी गर्दन पर रखकर उसका सारा खून पी जाता, उसकी बोटियां बोटियां कर देता। पर ऐसा न हुआ। अल्लाह वाले किसी जवान आदमी की तरह दौड़ते हुए उसके पास आए और अपने दोनों हाथों से चीते को उठाकर जमीन पर पटकी लगा दी। आपने कहा, मैंने तुमसे कहा था यहां से चले जाओ, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, पर तुमने इस आदमी पर हमला कर दिया। क्यों? वह बूढ़ा आदमी तो डरा सहमा खड़ा था, जिसकी अभी जान चली जाती। अगर अल्लाह वाले उस चीते को उठाकर जमीन पर फेंकते नहीं, आपके सवाल पर सब हैरान रह गए। जब वो चीता बोलने लगा कि मैं इसके साथ वही कर रहा था जो इसने आपके साथ किया है। इसने आपको बहुत दर्द दिया है, तकलीफ दी है, नौकर बनाक रखा है। मैं आपका गुलाम हूं। यह नाफरमान गुस्ताख सबके दिलों में जहर भर रहा था। अल्लाह वाले ने चीते से कहा, तुमने जो किया वह हमारी मोहब्बत में किया, लेकिन मैं इनको सुधारने के लिए यहां रहा, इसलिए मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। खामोशी से मैंने इस्लाम की तालीम इन तक पहुंचाई। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि तुम इसे मार दो तो तुम मार भी दोगे, जैसा कि अभी कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर यह इस्लाम को थोड़ी मानेंगे। ये तो कहेंगे एक मुसलमान ने इन सब को खत्म करने के लिए चीते का इस्तेमाल किया। यह सब नहीं करना है। इस्लाम बहुत प्यार से फैला है तुम्हारा। शुक्रिया, तुमने मेरी बात को माना। अब तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारा काम हो गया है, पर उससे पहले ठहरो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारा तोहफा। आपने थैले से एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा निकाला। कोई सोच भी नहीं सकता था उस थैले के अंदर गोश्त का टुकड़ा होगा। आपने वह गोश्त उस चीते के आगे डाल दिया। लो तुम्हारा खाना, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए यही नाम है। वह सब यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जिन हजरत की हमने कुद्र नहीं की, जिनको हमने एक नौकर बनाकर पानी भरवाया, जिनको एक मामूली समझकर हमने हद कर दी जुल्म की, पर इन्होंने उफ तक नहीं की। और यह जानवर जो कि खूंखार है, दरिंदा है, जो कि एक झटके में किसी को भी मार सकता है, ये जंगली जानवर इनका इतना ताबेदार, इनसे इतनी मोहब्बत करने वाला है। उन सबके दिल पिघलने लगे। वह शर्मिंदा हो रहे थे। एहसान पर एहसान जो कर दिया गया था। चीता वहां से जा चुका था, पेट भर गया था। अल्लाह वाले उन सब की तरफ पलटे और कहा कि प्यारे गांव वालों, मेरा सफर इस गांव के लिए नहीं था। मैं तो किसी और जगह जा रहा था,
इस्लाम की तालीम को आम करने के लिए। लेकिन अल्लाह का हुक्म जब होता है तो बंदे के कुदमुरा गांव में आ गया। और देखो, तुम सबने देख लिया मेरा रब कौन है जिसकी मैं इबादत करता हूं। सबसे पहले वह औरत बोल पड़ी जिसका वह पोता था। उसने कहा, मैंने तो आपको उसी वक्त मान लिया था जब आप मेरे बच्चे के लिए जंगल में गए थे। अब मैं इन सब से कहती हूं कि जो कुछ हमने गुनाह किए हैं उसकी माफी मांगी जाए। सबने आपके आगे हाथ जोड़ दिए। आपने कहा, मैं कोई माफ करने वाला नहीं हूं। मैंने वही किया जो मेरा मजहब कहता है, मेरा दीन कहता है। क्या तुम लोग उस अल्लाह को मान गए? बस इतना बता दो तो फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। सब एक साथ एक जवान होकर बोले, हाँ, हम अल्लाह को मान गए। अब हमें आप कलमा पढ़ा दो। फिर आपने उन सबको कलमा पढ़ा दिया और वह गांव के लोग मुसलमान हो गए। आपने उन सबको दुआ दी और यह भी कहा कि अब यह चीता कभी तुम्हारे गांव में नहीं आएगा। आपका काम फिर से शुरू हो गया था। आपको वहीं जाना था जहां जाने के लिए आप सफर करने निकले थे। अब आपके कदम वहीं बढ़ रहे थे और यह सफर बहुत ही निराला सफर था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।